Hello everyone, welcome to the course Data Structure using C. This is sorting techniques video. We have already seen what do you mean by sorting. Sorting refers to arranging data in a particular format or order, like ascending or descending order. We have already seen bubble sort and insertion sort. In this video we will see selection sort. This sorting algorithm is an in-place comparison based algorithm, same as insertion sort, in which the list is divided into two parts, the sorted part at the left end and unsorted part at the right end, same as insertion sort. Initially the sorted part is empty and unsorted part is the entire list. The smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element, and that element becomes a part of the sorted array. This process continues moving unsorted array boundary by one element to the right. इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे सॉर्टेड एरे जो भी है पहला एलिमेंट चूज़ करते थे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड कंसिडर करके उसको लेफ्ट मोस्ट एरे में इंसर्ट करते थे. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट चूज़ करके उसको सॉर्टेड एरे में जो भी नंबर्स है उससे कंपेयर करके प्रॉपर पोजीशन में इंसर्ट करते थे, इसीलिए उसको इंसर्शन सॉर्ट बोलते थे. पर यहाँ पे सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी सेम एक एरे यूज़ किया जाता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. वन लेफ्ट मोस्ट जो रहता है वो रहता है लेफ्ट सॉर्टेड एरे एंड राइट मोस्ट जो एरे है वो अनसॉर्टेड एरे रहता है उसमें. पर जब भी हमें सॉर्टेड एरे में जो भी वैल्यू प्लेस करनी है वो हमें पहले सिलेक्ट करनी पड़ती है. सिलेक्शन जो भी है वो बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो लेफ्ट मोस्ट जो सॉर्टेड एरे है उसमें इंसर्ट किया जाएगा. इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, बिकॉज before inserting that particular element in the sorted array we have to select the smallest one. That's why it is known as selection sort. The selection sort is the easiest method of sorting. To sort the data in ascending order, the zeroth element is compared with all the other elements. If the zeroth element is found to be greater than compared element, then they are exchanged. After the first iteration, the smallest element is placed at the zeroth position. In the first iteration, zeroth element is compared with first element. If the zeroth element is greater than, they are interchanged. अगर वो ग्रेटर है तो ही इंटरचेंज होता है, अगर वो लेस दैन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट है तो वो इंटरचेंज नहीं होता है. इफ़ द ज़ीरोथ एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट पोजीशन नंबर देन they are interchanged. If the zeroth element is not greater than first element, then they are not interchanged. The process is repeated till first zeroth element is compared with rest of the element. At the end of first iteration, the zeroth element holds the smallest number. क्योंकि हम जब भी अगर ज़ीरोथ पोजीशन का नंबर अगर ग्रेटर है तो हम उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, इसीलिए जो ज़ीरोथ लोकेशन पे सबसे स्मॉल नंबर जो रहेगा वो फर्स्ट इटरेशन में हमें मिल जाएगा. सेकेंड इटरेशन स्टार्ट्स विथ फर्स्ट एलिमेंट. पहले अभी ज़ीरोथ पोजीशन का सॉर्ट हो गया जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है. अभी हम नेक्स्ट पास जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा फर्स्ट एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे. द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन एंड स्वैपिंग इज़ रिपीटेड आफ्टर n-1. हमें कितने नंबर ऑफ पासेस करने पड़ेंगे? n-1. आफ्टर n-1 इटरेशन द एरे इज सॉर्टेड. दिस इज द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन सॉर्ट. लेट्स टेक अ लुक विथ एनिमेशन. दिस इज द एरे. First we will search the smallest number
and smallest number is interchanged with the 0th location. Then we will compare the first position number with all the numbers, and if required then interchange the number. Now we will choose the second position number with all the numbers, and minimum number is selected and swapped with the number, and it is inserted into sorted list. यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, 0th लोकेशन का जो भी नंबर था वो कंपेयर किया सारे नंबर से, और जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो हमें मिल गया और वो हमने रिप्लेस कर दिया। वैसे ही सेम इटरेशन हमने नंबर ऑफ n-1 तक हमने कंपेयर किया। अभी ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट में से हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किया और उसको रिप्लेस किया फर्स्ट 0th एलिमेंट से। उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ किया, फाइंड आउट किया और उसको रिप्लेस किया फर्स्ट लोकेशन पे। एज पर दैट द सिलेक्शन सॉर्ट सिलेक्ट्स अ स्मॉलेस्ट नंबर एंड रिप्लेसेस इट टू द नेक्स्ट location of sorted array. That's why it is known as selection sort, because it selects a smallest number and put it at the proper position in the sorted array. In this way the complete array will be sorted using n-1 iteration. Now we will see the algorithm. Step 1, set minimum to the location 0. सबसे पहले हमें location 0 पे comparison करना है. Search the minimum element in the list, swap with the value at minimum location. मतलब 0th पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जो कि सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलर है। उसके बाद इंक्रीमेंट मिनिमम, फिर मिनिमम की पोजीशन क्या हो जाएगी 1, पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, एंड फिर से हमें स्टेप 2 फॉलो करनी है, रिपीट द अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। जब तक ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, जब तक वो सॉर्टेड एरे हमें मिल नहीं जाता तब तक हमें ये कंपेयर करना है। मतलब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है और उसको 1 by 1 मिनिमम पोजीशन पे पुट अप करना है। नाउ वी विल सी द सी प्रोग्राम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट एज सेम एज इट इज़, जैसे कि हमने बाकी के प्रोग्राम में किया था। पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा वेरिएबल्स का, एरेज का। उसके बाद यूज़र से हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछेंगे और वो एरे में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, सारे नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, इसलिए हमने फॉर लूप स्टार्ट किया फ्रॉम 0th लोकेशन। i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन n-1 हमें कंपैरिजन करने पड़ेंगे, इसीलिए n-1 और i प्लस प्लस। उसके बाद सबसे पहले हमने 0th लोकेशन सिलेक्ट किया। 0th लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद करने के लिए हमने पोजीशन इज़ इक्वल्स टू i किया। अभी i की वैल्यू जो थी फर्स्ट इटरेशन में वो थी 0। उसके बाद फिर हमने j लूप लगाया, j इज़ इक्वल्स टू i प्लस 1, बिकॉज हमें जो फर्स्ट लोकेशन है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर लूप लगाया, j इज़ इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज़ लेस दैन n, j प्लस प्लस। ये कब तक चलेगा? जब तक सारे नंबर्स कंपेयर नहीं हो जाते एरे में के, तब तक हमें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। इफ़ a ऑफ पोजीशन इज़ ग्रेटर दैन a ऑफ j, अगर ग्रेटर दैन है तो हमें क्या करना है, वो नंबर जो है वो अगर ग्रेटर दैन है तो हमें इंटरचेंज नहीं करना है। अगर वो लेस दैन है वो पर्टिकुलर नंबर, तो ही हमें इंटरचेंज करना है पोजीशन। इसीलिए यहाँ पे पोजीशन इज इक्वल्स टू j हमने दे दिया। इफ़ पोजीशन इज़ नॉट इक्वल्स टू i देन स्वैप। कब हमें स्वैपिंग करना है? जब हमें मिनिमम नंबर मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, तब हमें स्वैपिंग करना है ith लोकेशन पे। इसीलिए इफ़ पोजीशन नॉट इक्वल्स टू i देन स्वैप। स्वैपिंग एज इट इज़, स्वैप इज इक्वल्स टू a ऑफ i।
ए ऑफ आई का जो भी वैल्यू रहेगा वो स्वैप में डालेंगे। ए ऑफ आई में ए ऑफ पोजीशन का वैल्यू इंसर्ट करेंगे और ए ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू स्वैप, उससे जो भी नंबर रहेंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। यही सेम प्रोसेस हमें सारे n-1 एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यू करनी है, तब तक हमें सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता तब तक। और उसके बाद सॉर्टेड एरे प्रिंट करने के लिए सेम फॉर लूप अप्लाई करके हम रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। दिस इज़ अ सी प्रोग्राम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ वी विल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सिलेक्शन सॉर्ट इज सेम in first iteration selecting a element with the smallest value calls for scanning of n elements। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे n एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, इसीलिए n नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड इन फर्स्ट इटरेशन। देयरफॉर n-1 comparisons are required, then the smallest value is swapped with the element in the first position। तो फर्स्ट इटरेशन में हमें कितने कंपैरिजंस लगेंगे, n-1 कंपैरिजन लगेंगे, तभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा और वो प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद इटरेशन 2, सिलेक्टिंग सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू रिक्वायर स्कैनिंग द रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। मतलब सेकंड इटरेशन में हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, अभी एक तो प्लेस हो गया, अभी दूसरा प्लेस करने के लिए हमें n-2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। वैसे ही इटरेशन 3 में n-3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे एंड सो ऑन, जब तक सारा एरे शॉर्ट नहीं हो जाता तब तक हमें ये कंपैरिजन करने हैं। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज इक्वल्स टू ये सारे इटरेशन जो है उनके लिए लगने वाला सारा टाइम जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, सेम एज बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। इसीलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O ऑफ n²। वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज O ऑफ n²। और बेस्ट केस भी इसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे नंबर्स ट्रैवर्स करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, ऑल द 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज O ऑफ n²। अगर हम सॉर्टेड एरे भी देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, फिर भी उसको O ऑफ n² इटरेशन नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगने वाले हैं सॉर्ट करने के लिए। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट विथ worst case, best case and average case is same O of n²। In insertion sort the best case time complexity will be O of n। बबल सॉर्ट की भी O of n थी, पर worst case में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की। वर्स्ट केस और एवरेज केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O of n² है, पर उनकी बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस के लिए O ऑफ n, पर सिलेक्शन सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n², सेम एज इट इज़ वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी सेम 1 बिकॉज वी यूज टेम्पररी वेरिएबल टू एक्सचेंज द नंबर। So this is a selection sort. In this video we have seen sorting techniques, then selection sort, how it sorts the algorithm, how it sorts the array, then selection sort, it find out the minimum value and place the value at a particular at the 0th location first, then in second pass second minimum number is found and it placed at the first location. In the third pass the third minimum number is searched and swapped with the existing third location and so on. That's why it is known as selection sort, because it selects
a particular minimum number, smallest number from the array and place that particular number at the proper place. Then we have seen the algorithm for the selection sort, then C program for the selection sort and time complexity of selection sort. Just remember, selections best case time complexity of selection sort is same O of n square. Thank you.